السلام علیکم۔ آج کی سچی کہانی عصمت کی ہے، ظہیر اور واجد کی ہے، اور عصمت کی ساس کی ہے۔ ان تمام کرداروں کے واقعات کو میں نے یکجا کر دیا ہے۔ تھوڑا سا افسانوی رنگ بھی بھرا ہے کیونکہ سچ کڑوا ہوتا ہے، کہیں آپ سنتے سنتے اسے درمیان میں روک نہ دیں، اس لیے جملوں کو تھوڑا سا خوبصورت بنا دیا ہے۔ آج کی سچی کہانی آئینہ ہے ہمارے دیہاتی معاشرے کی۔ آج بھی ایک ہی سزا دوسرے کو سنا دی جاتی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے آپ سب سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں، اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔ سالگرہ مبارک ہو پیاری دادو۔ میں دادو کے کمرے میں کیک کی پلیٹ لے کر داخل ہوئی۔ دادی جو پلنگ پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، ان کی بڑی آنکھیں مجھے دیکھ کر مسکرا دیں۔ میں کیک کی پلیٹ ان کے پلنگ پہ رکھ کر ان کے گلے لگ گئی، جس پر وہ مجھے ہمیشہ کی طرح بہت سی دعاؤں سے نوازنے لگی۔ ان کی محبت پر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ یہ بتائیے کتنے برس کی ہو گئیں؟ میری شرارت سے بولنے پر وہ بھی مسکرا دی۔ اتنی بڑی ہو گئی ہے تیری دادی، مگر تو اب بھی کیک لے کے ایسے آتی ہے جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں۔ ان کی بات پر میرا منہ بن گیا۔ کیک سے عمر کا کیا تعلق؟ آپ کو ابھی بہت جینا ہے میرے لیے۔ میں ان کے سینے سے لگتی ہوئی محبت سے بولی۔ ہاں، تمہارے لیے ہی تو جی رہی ہوں، دادو کھوئے ہوئے انداز سے بولی۔ میں بغور ان کی آنکھوں کو دیکھنے لگی جو ہمیشہ کی مانند بجھی بجھی سی محسوس ہوئی۔ دادو کی آنکھوں میں مجھے ہمیشہ نمی سی لگتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا ان کی آنکھوں میں کوئی گہرا سا راز چھپا ہے۔ میں بہت کم عمر تھی جب سے میں نے کبھی اپنی دادو کو سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ کا لباس زیب تن کیے نہیں دیکھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن میری بڑی بہن کی شادی تھی، میں بضد تھی کہ دادو آج تو رنگین لباس پہنے، مگر وہ میری بات کو ہنس کر ایسے ٹال گئیں جیسے میں کوئی نادان بچی ہوں۔ میرا نام زیبا ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں۔ 2 بھائی ہیں جو جاب کرتے ہیں، جبکہ 2 بہنوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میرے والد کی وفات کچھ برس پہلے ہی ہو گئی تھی۔ میں اور امی اپنی دادو کے ساتھ رہتے ہیں۔ چھوٹے ہونے کی وجہ سے میں سب سے زیادہ دادو کے قریب اور ان کی لاڈلی تھی، مگر ان سب کے باوجود بھی نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا دادو کے سینے میں کوئی گہرا راز دفن ہے۔ میں جب بھی ان کی آنکھیں بغور دیکھتی تو ان کی آنکھوں میں کرب نظر آتا تھا، کوئی گہرا کرب جس میں بہت سے راز چھپے ہوں، مگر میں کبھی یہ معمہ حل نہ کر سکی۔ میں ان کے لاکھ قریب تھی، مگر احترام کی وجہ سے ایک جھجک آڑے آتی تھی جو میں اپنے دل کی بات کبھی زبان پر نہ لا پاتی۔ میں بہت ذہین تھی، مجھے اسکالرشپ مل چکی تھی۔ میں تعلیم کی غرض سے آسٹریلیا جا رہی تھی، مگر امی کسی طور راضی نہ تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے دادو نے امی کو مجھے آسٹریلیا بھیجنے پر راضی کیا تھا۔ میں تو اپنے مرحوم باپ کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ پورے گھر میں سب سے زیادہ قابل میں ہی تھی۔ ابا اکثر امی سے کہا کرتے تھے، دیکھنا میری زیبا خوب پڑھ لکھ کر میرا نام روشن کرے گی۔ اب جب میں جانا چاہ رہی تھی تو امی کسی طور پر راضی نہ تھیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب دادو امی کو مجھے باہر بھیجنے پر راضی کر رہی تھیں تو ان کے لبوں سے نکلا تھا، ظہیر الدین کا بھی ارمان تھا وہ ثاقب کو باہر بھیجے۔ ان کی بات پر امی کے چہرے پر بے انتہا حیرانی تھی۔ امی کے ساتھ میں خود بھی دادو کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے کبھی اپنے دادا کا نام ان کے لبوں سے نہیں سنا تھا۔ آج اتنے برس بعد دادا کا نام سن کر میں اور امی دونوں ہی چونکے تھے۔ وہ ہم دونوں کے چہرے پر حیرانی دیکھ کر خود بھی گمسم سی ہو گئی تھیں۔ یوں میں بہت سی یادیں لے کر پڑھائی کی غرض سے آسٹریلیا آ گئی تھی۔ وہاں بھی امی اور دادو کو بہت یاد کیا کرتی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ امی اور دادو سے محبت تھی، مگر بعض اوقات مجھے دادو کی آنکھوں میں بسی اداسی بے چین کر دیتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں۔ جب وہ مسکراتی تو ان کی آنکھیں مجھے بہت خالی خالی سی محسوس ہوتی تھیں۔ میں اکثر جب امی سے اس بات کا ذکر کرتی تھی تو وہ یہی بولتی تھیں، تمہارا وہم ہے، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ وہم نہیں لگتا تھا۔ تعلیم حاصل کر کے جب میں وطن واپس لوٹی تو دادو کی صحت کافی گر چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھیں۔ دادو، آپ نے اپنا خیال کیوں نہیں رکھا؟ میں دادو کا ہاتھ تھام کر
खफकी से बोली, अब तुम आ गई हो, तुम रखना मेरा ख्याल। वो मेरा हाथ चूमते हुए बोली। दादो उम्र के इस हिस्से में भी काफी चाको चौबंद थी, मगर अब लगता था वो खुद ही ठीक नहीं होना चाहती। दादो, आप खुद बेपरवाही बरत रही हैं, बिस्तर पर लेटें। दादो को मैं मसनूई खफकी से देखते हुए बोली, जिस पर दादो के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। दादो की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही थी। दिन ब दिन वो मजीद बीमार होती जा रही थी। मैं और अम्मी दादो की सेहत को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे। मैं कुछ दिनों से दादो के कमरे में ही सो रही थी। रात में जल्दी ही सो गई थी कि रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख दादो की सिसकियों से खुल गई। वो बेड पे बैठी दोनों हाथ उठाए दुआ मांग रही थीं। आंसू टूट टूट कर इनकी झुर्रियों ज़दा चेहरे पर जज्ब हो रहे थे। मैं बेचैन होकर उठकर बैठ गई। दुआ मांगने के बाद दादो मेरी तरफ शफकत से देखने लगी, मगर इनकी आंखों में ठहरी अजियत आज मुझे बोलने से ना रोक सकी। दादो, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी आंखें मुस्तकिल उदास रहती हैं? मेरे कहने पर वो आज भी मुस्कुरा कर मुझे टाल जाती, मगर मैं मुस्तर हो गई। दादो समझ गई थी कि आज मैं नहीं सुनने वाली। कुछ देर बाद वो मेरा हाथ थाम के फूट फूट कर रो दी। इनके इस तरह रोने पर मैं बुखला गई। दादो, आप मत रोएं, आपकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं। मैं इनके दोनों हाथों को चूमते हुए बोली। वो काफी देर इसी तरह रोती रही। मैंने पानी का गिलास इनके लबों से लगा दिया। कुछ घूंट लेने के बाद वो चुप हो गईं और फिर अपने कमरे की बंद खिड़की को तकने लगी, जिसको वो खोलना पसंद नहीं करती थी। मैं अगर कभी खोलना भी चाहती तो वो मना कर दिया करती थी। वो खिड़की पर नजर गाड़े हुए बोलने लगी, मेरा नाम अस्मत अकबर है। हम 3 बहन भाई थे, गाँव में रहते थे। मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे थे। दौलत की रेल पेल के साथ अल्लाह ने हुस्न की दौलत से भी हम बहन भाइयों को नवाजा हुआ था। किसी चीज की कमी ना थी। हमारे बराबर ताया का घर था। ताया के हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे, जबकि हमारी काफी सारी जमीनें थीं। क्योंकि मैं अकलौती बेटी थी, इसलिए काफी नाजों से मेरे वालिदैन ने मुझे पाला था। अस्मत 12 साल की हो गई है। अकबर मियाँ, क्या सोचा तुमने? इसके बारे में ताया सदीक हुक्का पीते हुए बाबा से पूछने लगे। बाबा सोचों में गुम थे। इतना मत सोचो अकबर मियाँ, हमारी अमानत हमें दे दो। ताई सादिया सेहन में बिछी हुई चारपाई पर बैठते हुए बोली, भरजाई, मैं जरा अस्मत की माँ से मशवरा तो कर लूं। बाबा की बात पर ताया और ताई चुप हो गए। क्या सोचने लगी हो नुदरत? बाबा अम्मी से मुखातिब हुए। मैं सोच रही हूँ सदीक भाई के माली हालात इतने अच्छे नहीं। हमारी अस्मत को तो आसाइशों की आदत है। अम्मा कुछ हिचकिचाते हुए बाबा से बोली, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर ज़हीरुद्दीन मेहनती बच्चा है, अपना खर्च खुद उठाता है। उम्र में अस्मत से 13 साल बड़ा है, अच्छा समझदार है। बाबा की इस बात से तो अम्मा भी मुत्तफिक थीं। ज़हीरुद्दीन मेरे तायाजाद थे, खूबसूरत, पढ़े लिखे, संजीदा मजाज के। ज़हीर अम्मा अब्बा को बहुत पसंद थे। अम्मा इनके माली हालात की वजह से झिझक रही थीं। इसके साथ साथ इनको ताई के मजाज की भी फिक्र थी। ताया जितने नरमखो और अच्छी आदत के थे, ताई इतनी ही तेज मजाज की थी। तुम सोच लो आराम से, अस्मत तुम्हारी भी बेटी है। जो तुम बोलोगी वो मुझे भी मंजूर है। बाबा की बात पर अम्मा सर हिलाकर रह गईं। क्या सोचा फिर आपने भरजाई? ताया और ताई कुछ हफ्तों बाद हमारे यहाँ मौजूद थे। फिक्र ना करना, कभी तुम्हारी बेटी को किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये समझना, अस्मत अपने ताया के घर नहीं, अपने बाप के घर जा रही है। ताया की बात पर अम्मा मुस्कुरा दी और कुछ माह बाद ही ज़हीरुद्दीन की दुल्हन बनकर अपने ताया के घर आ गईं। मैं गुड़िया गुड्डे से खेलने वाली अपना बचपन माँ बाप की दहलीज पर ही छोड़ आई। मैं रोज ही अम्मा अब्बा से मिलती थी। मेरे अपने दोनों छोटे भाई वाजिद और शकील मेरी जान थे। दोनों भाई भी मुझ पे जान छिड़कते थे। ज़हीरुद्दीन की एक ही बहन थी, फौजिया, जो किसी भी तौर ज़हीरुद्दीन जैसी ना थी। शक्ल व सूरत, आदत और अतवार में वो बिल्कुल ताई जैसी थी, जबकि ज़हीरुद्दीन ताया जैसे खूबसूरत और नेक आदत के मालिक थे। इनकी निस्बत फौजिया ताई जैसी कबूल सूरत और मजाज की काफ़ी तेज थी। वो ज़हीरुद्दीन से पूरे 15 बरस छोटी थी। मेरी शादी के बाद मेरी माँ को जो अंदेशे थे वो सब दूर हो गए थे। ज़हीरुद्दीन की मेरे लिए मोहब्बत और चेहरे की मुस्कुराहट इनको अंदर तक शाद कर देती थी। ज़हीरुद्दीन तालीम याफ्ता थे। कुछ वक्त के बाद तरक्की करते चले गए।
ताया ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं इनकी बहू हूँ। वो हमेशा अपनी बेटी फौजिया की तरह मुझे समझते थे। ताया को लगता था कि मेरे आने से इनके हालात काफ़ी खुशहाल हो गए हैं। वो उठते बैठते इस बात का बरमला इजहार किया करते थे, जिस पर अक्सर ताई के चेहरे पर नागवारी आ जाया करती थी। अभी हमारी शादी को 4 साल ही हुए थे कि ताया का इंतकाल हो गया। ताया की मौत से मुझे काफ़ी धचका लगा था, क्योंकि ससुराल में मैं सबसे ज़्यादा इनके करीब थी। अब ताई की जली कटी पर मेरी हमायत लेने वाला ताया नहीं रहे थे। ज़हीरुद्दीन से कुछ भी कहना बेकार था। वो मुझसे अगर मोहब्बत भी करते थे तो माँ से इनको इश्क था। मोहब्बत कितनी भी हो मगर इश्क हमेशा मोहब्बत पर हावी आ जाता है। ताई दिन को रात बोलती तो वो भी दिन को रात बोलते। वक्त का पता ही नहीं चला। शादी को 6 बरस बीत गए। ज़हीरुद्दीन मेरा हाथ थामकर मोहब्बत पाश नज़रों से मुझे देखते हुए बोले, जानती हो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अल्लाह ने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा है। मैं जानती थी ज़हीरुद्दीन को मेहंदी किस कदर पसंद है, इसलिए मेरे हाथ हमा वक्त मेहंदी से रंगीन रहते थे। मैं सोच रहा हूँ शहर में शिफ्ट हो जाएं, ताकि वहाँ हम अपने बेटे को अच्छी तालीम दे सकें। अम्मा से पूछें इनको अगर शहर जाने पर कोई एतराज़ ना हो। मैं कुछ सोचते हुए बोली, क्योंकि मैं जानती थी इनकी यहाँ पर ताया मरहूम के साथ कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। इनको गांव से उनसियत भी बहुत है। गांव से उनसियत ज़हीरुद्दीन और मुझे भी बहुत थी, मगर बेटे के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर हमें शहर जाना था। अम्मा क्या सोच रही हैं? आप भी चलेंगी ना हमारे साथ शहर? ज़हीरुद्दीन ताई से बोले, जो पान की पटारी से पान निकालकर इस पर कत्था लगा रही थी। क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ताई छालिया के दाने मुंह में डालती हुई बोली, अम्मा जो तुम बोलो, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। मैं जानती थी ज़हीरुद्दीन की जान अपनी माँ में थी, और ये बात सब ही जानते थे। ताई भी ये जानती थी। अगर वो शहर जाने से मना कर देंगी तो इनका बेटा कभी शहर जाने का नाम नहीं लेगा। चलो ठीक है, तुम लोग चले जाओ, मैं चक्कर लगाती रहूंगी। अम्मा मगर यहाँ मैं अकेले तुमको और फौजिया को कैसे छोड़ दूं? ज़हीरुद्दीन फिक्रमंद होते हुए बोले, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ अकबर और नुदरत है, बराबर तो घर है, फिर कौन सा अकेलापन। ताई की बात पर ज़हीरुद्दीन चुप हो गए। मैं सोच रही थी आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं अपने साथ शहर वाजिद और शकील को भी ले जाऊं, वो भी शहर की तालीम हासिल कर लेंगे। मैं झिझकते हुए बोली, अच्छी बात है, इनको भी ले जाओ। ताई की बात पर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ताई सुनते ही झट से इनकार कर देंगी। हालांकि इन दोनों का सारा खर्च बाबा ही उठाते, मगर मुझे अंदेशा था वो मेरे दोनों भाइयों का मेरे साथ रहना गवारा नहीं करेंगी। शहर आने के बाद ज़हीरुद्दीन ने काफ़ी अच्छा घर बना लिया था। वो मुझे बहुत पसंद आया था। मैं वाजिद शकील का भी अपने साकिब की तरह ध्यान रखती थी। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा और 10 बरस बीत गए। अम्मा अब आई हो तो आराम से जाना। ज़हीरुद्दीन ताई के पास बैठे इनका हाथ थामे मोहब्बत से बोले, मैं यहाँ किसी खास मकसद के लिए आई हूँ। ताई मुझे बगौर देखते हुए बोली। मैं जो इनके आगे लस्सी का गिलास रख रही थी, चौंक कर इनको देखने लगी। फौजिया की कुछ फिक्र है तुझे? ताई की बात पर ज़हीरुद्दीन परेशान होकर माँ को तकने लगे। मैं भी ना समझी में ताई को तकने लगी। कोई रिश्ता नहीं आता, सबको इसकी वाजबी सूरत पर एतराज़ होता है। ताई की साफ गोई पर नज़दीक बैठी फौजिया का चेहरा बुझ सा गया। मुझे ताई के इस तरह बोलने पर काफ़ी अफसोस हुआ था। फौजिया अब पहले जैसी तेज मिजाज की नहीं रही थी। लबो लेजे में जो पहले तलखी हुआ करती थी, अब वही जुबान काफ़ी नरम हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं, हमारी फौजिया बहुत प्यारी है, लोग ही नाकदरे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मैं मोहब्बत से फौजिया को देखते हुए बोली, फिक्र तो ज़हीरुद्दीन को भी थी, मगर वो भी क्या करते। अरे बेटा, इतनी प्यारी है तो तुम क्यों नहीं भाभी बना लेती। ताई की बात पर मैं खामोश हो गई। मैं वैसे भी इसी सिलसिले में बात करने आई थी कि तुम अपनी माँ से बोलो कि वाजिद के लिए मेरी फौजिया का हाथ मांगे। ताई की बात पर मैं परेशान हो गई। मैं वाजिद की हुस्न परस्ती से बाखूबी वाकिफ थी और फौजिया की आंखों में नजर आती वाजिद की मोहब्बत भी देख चुकी थी, मगर मुश्किल ही था कि वाजिद मानता। तुमने फिर क्या सोचा है? रात जब मैं बिस्तर पर लेटी सोचों में गुम थी तो ज़हीरुद्दीन कमरे में आकर मुझसे बोले, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोलूं? कल गांव जाऊंगी,
अम्मा से बात करने के लिए। मैं गहरी सांस भरती हुई बोली, आपा आपको क्या हो गया? मेरी बात पर वाजिद उछल गया। इसमें क्या बुराई है? फौजिया एक अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बना देगी। जी मुझे पता है वो कितनी अच्छी है, वो इसकी तेज जुबान पर तंज करते हुए बोला। नहीं वाजिद, वो खुद तुम्हारी खातिर बदल चुकी है। तुम जैसा समझ रहे हो वो ऐसी बिल्कुल नहीं। मैं इसे यकीन दिलाते हुए बोली, वो मुझे नहीं पसंद। मेरा और इसका शक्ल व सूरत में भी कोई मुकाबला नहीं। वाजिद साफ कोई से बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से अम्मा को देखने लगी। अम्मा तुम ही समझाओ। मैं क्या समझाऊं बेटा, वो सुनने पर राजी नहीं। बोलता है वहाँ बहनोई ने अपने घर में रखने की कीमत वसूल की है। इससे पहले मैं कुछ बोलती, ताई की आमद हो गई। अपनों में क्या शर्म, जब मैं बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांग सकती हूँ तो क्या ये नहीं बोल सकती कि मेरी बेटी का भी तुम हाथ मांग लो। इनकी बात पर अम्मा जबरदस्ती मुस्कुरा दी। वहाँ पे मौजूद हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें, क्योंकि हम जानते थे वाजिद कभी नहीं मानेगा। अब्बा कमरे में दाखिल होते हुए बोले, क्यों नहीं बोल सकती? वाजिद भी आपका ऐसा है जैसे जहीर। आप बड़ी हैं, आपको बिल्कुल हक है। बाबा के फैसले के आगे दिल ना होते हुए भी वाजिद ने सर झुका लिया। मगर मुझे वाजिद के चेहरे पर खुशी की रमक महसूस नहीं हुई। जहीरुद्दीन भी इस शादी से खुश थे। अभी फौजिया और वाजिद की शादी को कुछ माह ही गुजरे थे कि जहीरुद्दीन गांव किसी काम से आ गए। वापसी पे इनके साथ अम्मा को आना था। अम्मा अब्बा के आने पर बेकरारी से मुझे भी इंतज़ार था, मगर वापसी पर जहीरुद्दीन की गाड़ी का तसादुम सामने से आते ट्रक से हो गया, जिसके नतीजे में अम्मा और अब्बा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि जहीरुद्दीन काफ़ी जख्मी हुए थे। मुझे लग रहा था मुझ पर किसी ने दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। अम्मा अब्बा की बेवक्त मौत ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया था। ऐसे हादसे में जहीरुद्दीन की रीढ़ की हड्डी काफ़ी मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से कासिर थे, बिल्कुल बिस्तर के होकर रह गए थे। 2 हफ्ते हो गए भाई भाभी को दुनिया से गए हुए। ताई जो गांव से शहर आई हुई थी, वो पिछले 2 हफ्ते से हमारे पास रह रही थी। उन्होंने सर्द आ भरकर कहा, यकीन नहीं आता अम्मा अब्बा चले गए। मैं अपनी खाली हथेलियों को तकते हुए बोली, जो लग रहा था हकीकत में खाली ही हो गई थी। सब्र कर बेटी, ताई मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली। ताई मेरे दिल को सब्र ही तो नहीं आता, हर तरफ अंधेरा है। जिस माँ की गोद में सर रख के मैं अपनी तकलीफ़ों पे सारे आंसू बहा दिया करती थी, इसी बाप का हाथ थाम के मुझे जलती हुई धूप में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था, वह दोनों आज मुझे मैसर नहीं। मैं बिलक बिलक के रोने लगी। ताई मुझे गले लगा कर तसल्ली देने लगी, मगर मुझे लगता था हर हरफ तसल्ली बेकार है। मैं दिन रात जहीरुद्दीन की खिदमत में लगी रहती थी। मेरे लबों पे हमावर शोहर की तंदुरुस्ती की दुआएं होती थीं। डॉक्टर ने जहीरुद्दीन का ऑपरेशन बताया था। अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, मगर ये खदशा भी जाहिर कर दिया कि ऑपरेशन नाकाम होने की सूरत में सारी जिंदगी अपाहज भी हो सकते हैं। मैं नमाज से फारिग ही हुई थी कि ताई मेरे पास चली आई। बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी है। ताई मेरे पास बैठते हुए बोली। जी बोलिए। मैं ताई को देखते हुए बोली, एक कसम खाओ। वो मेरा हाथ थामते हुए बोली, कैसी कसम? मैं परेशान होते हुए ताई को देखने लगी। खुदा ना करे ये ऑपरेशन नाकाम हो गया तो तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ोगी। मैं जानती हूँ मैं बहुत खुद गर्ज हो रही, रोती हुई बोली। इनकी बात पर मैं तड़प कर रह गई। मैं मर ना जाऊं, कभी जहीरुद्दीन को छोड़ दूं। मुझे इनसे मोहब्बत नहीं इश्क है। मैं आपसे वादा करती हूँ जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मैं जहीरुद्दीन को नहीं छोड़ूंगी। मैं इनका हाथ थामती हुई इनको यकीन दिलाते हुए हिचकियों से रोती हुई बोली, अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली थी। ऑपरेशन कामयाब हो गया था। जहीरुद्दीन कुछ माह बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। वाजिद अपनी बीवी के साथ शहर में ही शिफ्ट हो गया था। शकील पढ़ाई की गर्ज से बाहर मुल्क चला गया था। ताई को भी जहीरुद्दीन ने अपने पास शहर बुला लिया था। सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे। रात में किसी काम से अपने कमरे से निकली तो ताई के जोर जोर से बोलने पर घबरा कर इनके कमरे की तरफ बढ़ी, जहां फौजिया इनके पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। क्या हुआ, खैर तो है? मैं कदरे घबराए लहजे में बोली। तुम्हारा भाई मर गया इसलिए रो रही है, ताई चीख कर बोली। इनके इस तरह बोलने पर मेरा दिल लरस गया। अल्लाह ना करे, फौजिया तड़प के बोली। जब इतनी शोहर की फिक्र खा रही है तो मेरे पास बैठकर क्यों रो रही हो? ताई इसके बोलने पर तड़प के बोली।
ज़हीरुद्दीन भी घबरा कर वहां आ गए थे। ताई की बात पर उन्होंने वाजिद को फ़ोन करके घर आने को बोला। थोड़ी देर बाद वाजिद भी वहां मौजूद था। फौजिया क्या बोल रही है? मैं भाई को सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली। ठीक बोल रही है, मैंने दूसरी शादी कर ली है। मुझे कभी भी ये पसंद नहीं थी। वाजिद की साफ गोई पर मैं इसकी तरफ देख रही थी, जबकि ताई और ज़हीरुद्दीन का चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो रहा था। मेरी नज़र फौजिया पर पड़ी, जो अब रो नहीं रही थी, बस साकित चेहरे से बैठी थी। मुझे इस लम्हे इस पर बेइंतहा रहम आया और अपने भाई से नफरत महसूस हुई। वाजिद के अंदाज में खुदसरी देखकर मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा था। वो वहाँ से चला गया था और अगले दिन ही इसने हमारे सर पर तलाक के कागजात भिजवा कर बम फेंक दिया था। तलाक के बाद फौजिया बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मुझे अपना आप चूर चूर महसूस होता था। ताई के चेहरे पर मुझे देखते ही नागवारी सी आ जाती थी। ज़हीरुद्दीन भी काफ़ी चुप चुप रहने लगे थे। मैंने बहुत मोहब्बत की थी भाभी वाजिद से। मैंने सर ता पैर खुद को बदल लिया था, मगर रोज़े अव्वल से ही इनके दिल पर कभी चढ़ी नहीं थी। मुझे बहुत अफसोस होता है अम्मा ने क्यों ज़बरदस्ती मुझे इनकी ज़िंदगी में शामिल किया। मैं खुद भी चाहती थी इनकी ज़िंदगी में शामिल होना, मगर अनचाहा होने का कर्ब इंसान के पूरे वजूद को आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह चाट जाता है। वो मेरे गले लग के फूट फूट कर रो दी। इसके साथ मैं भी आंसू बहा रही थी। मुझे इसका दुख रुला रहा था। मुझे माफ़ कर दो फौजिया, मैं भरे लहजे में बोली। नहीं भाभी, इसमें आपका क्या कसूर? वो मेरी बात पर बोली। मुझे वाजिद पर मलाल था। इसने मसनूई चमक धमक के खातिर हीरा गंवा दिया था। फौजिया की बीमारी ने हम सब को ही फिक्र में मुब्तला कर दिया था। मैं इसको डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे। रिपोर्ट आने पर लग रहा था किसी ने हमारे पैरों तले ज़मीन निकाल दी हो। फौजिया को कैंसर था। वो ज़्यादा अरसा इस बीमारी से जंग लड़ ना सकी और ज़िंदगी को शिकस्त दे गई। इसकी मौत ऐसा सान्या था जिसने हम सब को तोड़ कर रख दिया था। ताई फौजिया की मौत के बाद बिल्कुल टूट कर रह गईं। वो खामोश हो गई थीं। इनकी खामोशी मुझे किसी तूफान का पेशखैमा लग रही थी। ज़हीरुद्दीन चुप चुप से रहने लगे थे। इनके अंदाज में अब मेरे लिए पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही थी। इनकी आंखों में मुझे ढेरों शिकवे नजर आते थे, मगर वो मुझसे कुछ नहीं बोलते थे। मेरा दिल चाहता था जो भी इनके दिल में है वो बोलकर अपनी भड़ास निकाल लें। मैं जानती थी इनके दिल व दिमाग में मुझसे लेकर बहुत सी बातें होंगी। मैं हर तरह से बेकसूर होते हुए भी कसूरवार थी। फौजिया की मौत में वाजिद का ही हाथ था। इसकी बेअनाई ने इसे अंदर ही अंदर खा लिया था। मैं अपने कमरे में लेटी ज़हीरुद्दीन का इंतज़ार कर रही थी। जब काफ़ी देर हो गई और वो मेरे कमरे में नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से इनको देखने चली गई। बातों की आवाज़ ताई के कमरे से आ रही थी। ताई की बात ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। तुम्हारी बहन असमत के भाई की वजह से मर गई। इतनी अजियत सही मेरी बेटी ने, और तुम इसकी बहन को इतने सुकून से रहने दे रहे हो। जिस अजियत से तुम्हारी बहन गुजरी, इसको भी इसी अजियत से गुजारो ताकि इसे पता चले कि तकलीफ क्या होती है। ताई बेरहमी से बोली। इनकी बात पर मैंने अपने चकराते वजूद को थामने के लिए दीवार का सहारा लिया। मेरी समातें ज़हीरुद्दीन की बात की मुंतज़िर थीं। अम्मा, मगर इसमें असमत का क्या कसूर? इसको भी इतना ही दुख है जितना हमें है। शोहर की बात पर मेरे दिल को ढारस मिली थी। इसको वो दुख कहाँ होगा जो बेटा एक माँ के दिल को होता है। माँ का दुख सब दुखों पर हावी होता है। ठीक है बेटा, तुम फिर इस घर में रहो अपनी बीवी के साथ। मैं वापस गांव जाऊंगी। ताई की बात पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अम्मा, आप क्या चाहती हैं? ज़हीरुद्दीन बेचारगी से बोले। मेरा दिल चाहा मैं अपने कान बंद कर लूं, ताई की आवाज़ ना सुनूं, मगर मुझे अपनी सज़ा सुननी थी। ये दुनिया का दस्तूर है, जोर हमेशा कमज़ोर पर ही चलता है। करता कोई है, भरता कोई है। मैं अपनी सज़ा सुनने के लिए मजबूती से खड़ी थी, मगर दिल मेरा लग रहा था किसी भी वक्त ढह जाएगा। ज़हीरुद्दीन, खाओ मेरे सर की कसम, तुम असमत से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। वो तुम्हारी बीवी रहेगी, मगर इस घर में तुम इसके साथ किसी अजनबी की तरह जिंदगी गुजारोगे। तुम इसकी तरफ देखोगे नहीं। ताई के फैसले पर मैं चकरा सी गई। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं? ज़हीरुद्दीन बेयकीनी से बोले। ठीक है, फिर अपनी माँ का मरा मुंह देखना। ताई की सर्द आवाज़ गूंजी। मैं कमरे के बाहर खड़ी ये सोच रही थी
कि काश वो मुझे फांसी की सज़ा सुना देती, मगर पल पल मरने के लिए ना बोलती। मगर वो भी तो मुझे इस दर्द से आशना करना चाहती थी जिस दर्द से इनकी अपनी बेटी गुजरी। आपा, मुझे यकीन नहीं आ रहा ज़हीर भाई ऐसी हरकत करेंगे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई। मुझे ज़हीर भाई जैसे दानिशमंद इंसान से ऐसी तवक्का नहीं थी। वाजिद कॉल पर मुझसे गुस्से में बोला, छोड़ो मेरे भाई, तुम ये बताओ तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो? मैं इसकी बात पर बोली। मेरी बात पर वो चुप सा हो गया। आपा, ज़िंदगी गुजारने को सबका हक है और मैं शुरू से फौजिया को पसंद नहीं करता था। बस इस वक्त ये गलती हुई कि मैं अब्बा के फैसले पर इनकार ना कर सका। वाजिद बोला, हाँ, अगर तुम इनकार कर देते तो कम से कम 3 जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। मगर तुम तो खुश हो ना अपने घर में, खुशबाश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। तुम जैसे भाई ही होते हैं जिनकी बहनों के दिलों से सिर्फ इनके लिए आहें ही निकलती हैं। तुम मेरे भाई हो, मेरा खून हो। मैंने तुम्हारा ख्याल ऐसे ही किया जैसे अपनी औलाद का। तुम ये ना समझना मैं तुमको जता रही हूँ, मगर तुम ये सब करते हुए एक बार कुछ तो सोचते। मगर तुमने तो बस अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना था, चाहे दूसरों के दिल मकबरे बन जाएं, मगर तुम खुश रहो। मगर मैं क्या करता, मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं था। वाजिद की बात पर मैं बेरहमी से हंस दी। तुमने भी तो बस सजा सुनाई थी और चलते बने अपनी दुनिया बसाने। पलट कर तो देख लेते कि तुम्हारे साथ कोई और भी जुड़ा था। तुमने इसको छोड़ा भी तो किस बुनियाद पर कि वो कमसूरत थी। ये भी ना सोचा कि वो तुम्हारी खातिर किस कदर बदल चुकी थी। ठीक बोल रहे हो, तुमको यही करना चाहिए था। जब अब्बा जी ने हुक्म दिया था, तुमको सर झुकाकर इस हुक्म की तामील नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि सर उठाकर इस वक्त मना कर देते। तुम्हारी इस ना से कुछ दिन तकलीफ होती अब्बा को, मगर इतनी नहीं होती जितनी आज इनकी रूह को तकलीफ पहुंची होगी। तुमने तो भाई होने का हक अदा नहीं किया। इनके इस अमल से क्या पता इनकी माँ के जलते दिल को ठंडक पहुंच जाए। और मेरा क्या है, मेरे नसीब में तो अब जलना उम्र भर का है। बोलते बोलते मेरे गले में आंसुओं का गोला अटकने लगा तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखने के बाद फुट फुट कर रो दी। शकील ने बाहर शादी कर ली थी। इसने पाकिस्तान लौटकर आना ज़रूरी नहीं समझा। वाजिद ने शुरू में बात करना चाहिए, मगर मेरे सर्द अंदाज पर इसने पलट कर कभी कोई राब्ता नहीं किया, क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। वो इस बहन को अपनी जिंदगी से खारिज कर चुका था, जिस बहन ने इसे इतनी मोहब्बत चाहत दी थी, अपने बच्चों की तरह चाहा, यहाँ तक कि इसके लिए सजा भी भुगती, और ऐसी सजा जिससे रूह तक बिलबिला जाती थी। ज़हीरुद्दीन ने अम्मा की कसम के बाद मुझ पर कभी नजर नहीं डाली। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इनके सामने आना छोड़ दिया। मैंने अपनी जात को कमरे तक महदूद कर लिया था, मगर खाना पकाना और जो इनसे वाबस्ता काम थे खुद करने की कोशिश किया करती थी। इससे ये एहसास होता था मैं अभी बेहता हूँ, मगर मैं ज़हीर के कमरे की तरफ रुख नहीं करती थी, क्योंकि ज़हीरुद्दीन को पसंद नहीं था कि मैं इस तरफ आऊँ भी। अम्मा का कुछ बरस बाद इंतकाल हो गया था। साकिब की शादी दूर के रिश्तेदारों में सादगी से घर पर ही कर दी थी। धूमधाम से करती तो दुनिया को मेरे और ज़हीरुद्दीन के ताल्लुकात की नोयत का अंदाज़ा होता। नुसरत मेरी बहुत अच्छी बहू साबित हुई। बेटी की कमी भी नुसरत के आने से पूरी हो गई थी। कुछ वक्त के बाद नुसरत मेरे और ज़हीरुद्दीन के ताल्लुकात को जान गई थी, मगर इसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। दूसरी जानिब साकिब मेरे और ज़हीरुद्दीन के ताल्लुकात पर बहुत दुखी रहता था। एक रात ज़हीरुद्दीन की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। इससे पहले साकिब इनको हस्पताल ले जाता, इसकी नौबत ही ना आई और ज़हीरुद्दीन खालके हकीकी से जा मिले। और इस दिन मैंने अपने कमरे की इस खिड़की को भी बंद कर दिया था, जिससे छुपकर मैं इनको खामोशी से आता जाता देखती थी। मेरे जीने का वाही सहारा इनको चुपचाप इस खिड़की से देखना ही तो था, मगर इनकी मौत के बाद वो खिड़की मैंने कभी नहीं खोली, क्योंकि अब इस खिड़की से देखने को मेरे पास कुछ नहीं बचा था। ज़हीरुद्दीन की वफात के बाद जब मैं इस कमरे में दाखिल हुई, जिसमें मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी थीं और जिसको छोड़े मुझे एक अरसा बीत गया था, मैंने इस कमरे में कदम रखा तो मुझे महसूस हुआ मेरे दिल के साथ इस कमरे के दरो दीवार भी रो रहे हैं। मैं इस कमरे में खड़ी ज़हीरुद्दीन के होने का एहसास महसूस करती थी। मेरी आंखों से आंसुओं की सेल रवां जारी थी।
मेरी नज़र ज़हीरुद्दीन के बिस्तर पर रखे तकिए पर पड़ी, जिसके नीचे सफ़ेद रंग का कागज़ झांक रहा था। मैं आहिस्तगी से बेड पर बैठ गई और इस कागज़ को उठाकर खोल लिया। इस पर ज़हीरुद्दीन ने कुछ लिखा हुआ था। मैं इसको पढ़ने लगी। प्यारी अस्मत, कैसी हो? ये ख़त लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं तुमसे मुखातिब हो सकूं, मगर एक दुआ करता हूँ, जैसा वक्त और जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी, खुदा किसी दुश्मन पर भी सबक ना लाए। माँ की कसम, मेरे इन कदमों को तो बांध गई थी जो तुम तक आते थे, मगर मेरे दिल को ना बांध सकी जो तुमको ही सोचता था। मेरे ये माहो साल कैसे गुजरे, अगर मैं लिखने बैठूं तो शायद वो एहसासात बता ही ना सकूं। हाँ, इन एहसासात को मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ों का नाम दूंगा, कर्ब और अजियत। मैं जब सहन से गुजरता था और तुम मुझे अपने कमरे की खिड़की से छुप कर देखा करती थी, तो मैं नज़रों को अपनी सख्ती से ज़मीन की जानिब मरकूज कर लेता था कि अगर ये तुम्हारी तरफ उठ गई तो पलटने से इनकारी हो जाएंगी। रोज़ जीता और रोज़ मरता था, दिल में तुमसे रोज़ माफ़ियाँ मांगता था, मगर अम्मा की इस कसम ने मुझे अंदर से ख़त्म कर दिया था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फ़क्त तुम्हारा ज़हीरुद्दीन। आंसू मेरी आंखों से बहने लगे, जिनको मैं अपने सफ़ेद दुपट्टे से साफ करने लगी। ज़हीरुद्दीन से दूरी के बाद मैंने कभी कोई रंग नहीं पहना था। इनके दूर होने से मेरी ज़िंदगी के तमाम रंग ख़त्म हो चुके थे और बस सफ़ेद रंग मेरे वजूद का हिस्सा बन गया था। इस पर अगर एक छींट भी आ जाए तो बड़ा बदनुमा दाग लगता है। बस मैंने भी इस सफ़ेद रंग की पासदारी की थी। एक कसम मैंने अपनी सास से खाई थी, इनके बेटे को ना छोड़ने की, और एक कसम इनके बेटे ने खाई थी, मेरे होते हुए भी मुझसे कोई ताल्लुक ना रखने की। हम दोनों ही इस कसम को आखिरी दम तक निभाते रहे। औरत के लिए बड़ी कर्ब की बात होती है जब वो शोहर के होते हुए भी बेवा वाली जिंदगी गुजारे। मेरा हाल भी इस बेवा जैसा था जो शोहर के होते हुए भी बेवा थी। ये कैसी अनोखी कसम थी दादो, जो आप दोनों को इतना दूर कर गई। दादो जो बोलते बोलते थक सी गई थीं, मेरी बात पर इनके लोगों पर उदास सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ कस्में ऐसी होती हैं जिनमें आपका दिल चीख चीख कर इस कसम को तोड़ने की दुहाइयां देता है, मगर हकीकत में इन कसमों की पासदारी करना पड़ती है। दादो की बात पर मेरा दिल जो पहले ही दुखी था, इस पर मजीद बुझ सा गया। आज मुझे दादो की आंखों में ठहरे दुख का मतलब समझ आ चुका था।